Today we are going to learn how can we get input in our program and how can we display the output in our program. So first of all, for input, everybody, it's very important concept और आपको पूरे Python में जब जब आप प्रोग्राम बनाएंगे हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी. That is input function. Okay. So here on the screen you can see the syntax is given variable equal input, and within bracket of input function it is written message to display. Means whenever we will write input function with some message, the same message will display also on the output screen. Yes, directly coming on to the example so that you can understand easily. Marks equal input, enter your marks. Yes, you can see this line here. Input function is used here to get the input from the user. Now what will happen here? As this line will run, the message enter your marks will appear on output screen. As you can see here, enter your marks. This is the output. Whatever the message or statement or sentence that we will write inside input function, the same will appear on output screen. After reading the message, enter your marks, you may type 100 or whatever the number that you want to assign into marks variable. This 100 is typed. Okay. This 100 is typed, but this message appeared automatically because enter your marks is written inside input function. As 100 is written here or typed here, now the value of marks is 100. It means 100 is integer. 100 is integer. But here if we check the marks type, already we know that type function is used to provide the type of variable, whether it is integer or string or boolean, etc. Okay, so as per the code, the data type or the type of 100 is integer, and this 100 is assigned into marks. It means marks should be also integer. But in the next line, you can see the output is coming not int, it is coming str. Yes, you can see class str. Now the question mark is that why str has come? Because 100 is integer, 100 is assigned into marks, so marks is also integer. Then why str is coming? Str is coming because input function whenever receives a value, it converts it into string. आप इनपुट फंक्शन का यूज करके जब भी कोई इनपुट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग विद डबल कोट्स. ओके, बट if you want to perform some mathematical operations on the variable, so you have to compulsorily make that variable integer. It means you have to convert a string into integer. So now I am going to write the same code on my Python. You all are also requested to write it on your Python platform and see what happens. Okay. So 18 students are connected today. Please on your videos बेटा. एक हैबिट बना लीजिए वीडियो ऑन करके क्लास में रहने की, बार बार टीचर को बोलना नहीं पड़ेगा. यस, वैष्णवी, अश्विनी, दिव्या, राघवेंद्र, मयंक, मीनाक्षी. मैम. यस मैम. बोलिए बेटा. यस, यो स्टार्ट करेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी, इसीलिए नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. But remaining students, please switch on your video.
कुलदीप, यश, वैष्णवी जोशी, निशा, आदिति, यश, सुरागे एंड सुयश तोमर। सबकी डिवाइस में तो दिक्कत हो नहीं सकती, ये तो हमें भी समझ में आता है ना। तो प्लीज स्विच ऑन करिए अपने वीडियोस। Yes. So the code that we are going to write, Yash has written already the code. Marks equal input, enter your marks 100, type of marks str. Yes, correct. बिल्कुल सही Yash. Very good. So in this manner you can write, you can get the input from the user. Okay. चलिए हम करके देखते हैं. I am writing here. Yes. So here I am going to write the code in the new window that I have opened. What can we write here? Simply, yes. So I am writing here marks. सभी बच्चे लिखे बेटा, है ना? सभी करके देखिए. Input and then enter marks, and then if we write like this, okay, and I print here marks. दो चीजें हमने की बेटा. एक तो हमने मार्क्स इक्वल इनपुट एंटर मार्क्स लिखा ताकि हम यूजर से मार्क्स की वैल्यू एंटर करवा सके, और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया. तो मार्क्स वेरिएबल में जो भी यूजर ने एंटर किया होगा वो आना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए. तो हम इसको देखिए रन करके देखते हैं. आई एम गोइंग टू सेव इट विद द नेम इनपुट फंक्शन input1. ओके, ये देखिए जब आपका कोड रन हो रहा है, पहले लिखा है मार्क्स इक्वल इनपुट एंटर मार्क्स. सो ऑन आउटपुट स्क्रीन यू कैन सी एंटर मार्क्स मैसेज इज अपेयरिंग. अब हमें मैसेज ऐसे देना है इनपुट के समय जिसको देख करके आउटपुट विंडो में समझ में आए जो रन कर रहा है उसको कि आखिर मुझे करना क्या है. तो अब आप इस मैसेज को पढ़ के एंटर मार्क्स, समझ में आ रहा है कि भाई मुझे मार्क्स एंटर करना है. मैंने 90 लिख दिया. जैसे ही मैंने 90 लिखा, ये 90 किस में चला गया? ये 90 चला गया इस वेरिएबल में जिसका नाम है मार्क्स. फिर लिखा प्रिंट मार्क्स, तो जो वैल्यू मार्क्स वेरिएबल में गई थी वो प्रिंट हो गई. इसलिए आपको आउटपुट विंडो में 90 एक बार फिर से लिखा दिख रहा है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. अब देखिए होगा क्या अगर हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं. प्रिंट टाइप, एंड देन आई राइट हियर विदिन ब्रैकेट print type bracket then marks then bracket. अब देखिए क्या होता है. yes, again I am writing here 90, enter. 90 एंटर किया, 90 मार्क्स वेरिएबल में चला गया, मार्क्स को प्रिंट किया तो 90 प्रिंट हो गया. लेकिन उसके बाद वाली लाइन में क्लास str लिखा आ रहा है, जबकि 90 तो इंटीजर वैल्यू है. तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू इनपुट लेता है वो उसको स्ट्रिंग बना देता है. लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं, इनपुट फंक्शन भले ही स्ट्रिंग बनाए पर ये इंटीजर अल्टीमेटली बन जाए या इंटीजर ही हम उसको यूज करें. सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट int before input function. On screen you can see I have written marks equal int, then within bracket input, then within bracket enter marks. Okay, so there are 2 left brackets and 2 right brackets. और जो भी आपने इनपुट किया वो पहले तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये int नाम का जो आपका फंक्शन है ये मार्क्स को, मार्क्स वेरिएबल या उस वैल्यू को, वेरिएबल को नहीं, जो भी आप वैल्यू एंटर कर रहे हो उसको इंटीजर बना के मार्क्स वेरिएबल में देगा. तो अब अगर आप यहाँ पर टाइप में मार्क्स लिखे हैं और फिर से हम इसको रन करके इनपुट वैल्यू देते हैं 90. सो सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. नाउ इट इज गिविंग यू क्लास int. ओके, तो जब आप यूजर से कोई इंटीजर वैल्यू, कोई नंबर, कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करवाते हैं तो प्लीज कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर. और इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, यू हैव टू राइट हियर int. ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग. यस, सभी बच्चे कर रहे हैं. यस, सिंटेक्स एरर. कुलदीप, शो योर कोड सो वी कैन हेल्प यू.
Kuldeep, if you are facing any syntax error, then we can help if you share your code. Okay, now here you can see one more example of input function. Salary equal input, enter your salary. Yes, enter your salary. सैलरी की वैल्यू जो भी आपने इनपुट फंक्शन से एंटर की वो किस में जा रही है? सभी बच्चे देखिए जरा ध्यान से स्क्रीन पर, सैलरी इक्वल इनपुट, एंटर योर सैलरी। जब आप ये कर रहे हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर योर सैलरी। फिर आप वहां से सैलरी की वैल्यू एक एंटर करेंगे। जैसे ही सैलरी की वैल्यू एंटर करेंगे वो किस में असाइन होगी? राघवेंद्र, राघवेंद्र बताइए, सैलरी की वैल्यू किस में जा रही है? राघवेंद्र, नो रिप्लाई। मयंक, मयंक, दिव्यांशी, यस मयंक बोलिए। मयंक बोलिए बेटा। No reply. I don't know why you people don't give the reply. It is part of the class. आपको reply देना चाहिए। आपका नाम टीचर यहाँ से पुकार रहा है, but you are not responding. यश योगी, यश योगी, हाँ बेटा बताइए क्या पूछा मैंने? Repeat the question. हाँ बेटा, Repeat the question, please. रिपीट द क्वेश्चन। ओके, ऑन स्क्रीन आपको स्क्रीन नजर आ रही है यश? Yes, ma'am. यहाँ लिखा है फर्स्ट, द फर्स्ट लाइन इज व्हाट? सैलरी इक्वल इनपुट, एंटर योर सैलरी। इट इज रिटन, ठीक है। अब एंटर योर सैलरी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, और आप जो भी टाइप करोगे वो किस में चला जाएगा ये पूछ रही हूं मैं। जैसे यहाँ 5000 टाइप हुआ है, ये 5000 किसकी वैल्यू बन गई, किस वेरिएबल में असाइन हो गया ये? Integer में। हाँ बेटा बोलिए। मैम SCR। SCR, where it is written SCR? मैम क्लास STR। क्लास STR नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो फर्स्ट लाइन है वो जब एग्जीक्यूट होगी और आप एंटर करोगे 5000, तो वो 5000 कहाँ जाएगा, किस वेरिएबल में असाइन हो रहा है ये पूछ रही हूँ। सैलरी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। हियर इट इज रिटन सैलरी इक्वल इनपुट, एंटर योर सैलरी। तो सिंपली सैलरी नाम के वेरिएबल में आपने जो भी इनपुट किया वो असाइन हो जाएगा। लेकिन जब आपकी नेक्स्ट लाइन रन हो रही है, बोनस इक्वल सैलरी इंटू 20/100, व्हेन यू आर रनिंग दिस लाइन एरर इज कमिंग। व्हाई? क्यों एरर आई? क्यों एरर आई, कोई बता सकता है? यस क्योंकि आपका जो कॉलम है सैलरी वो अभी स्ट्रिंग टाइप का बता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वैल्यू पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सैलरी को जो लिखा है ना, सैलरी स्टार 20/100, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बिकॉज सैलरी इज स्ट्रिंग, सैलरी अभी इंटीजर नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर समझ में आती है या डिस्टरबेंस रहता है? Yes, ma'am. यस मीन्स यस फॉर व्हाट? डिस्टरबेंस रहता है या क्लियर आती है? मैम क्लियर आती है। क्लियर आती है। तो फिर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं मिलते उतनी फास्ट?
रिप्लाई भी तो मुझे उतने फास्ट चाहिए ना। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ और अचानक मैं पूछती हूँ चलिए अब आप बताइए, तो यू पीपल डोंट रिस्पॉन्स क्विकली, है ना। थोड़ा सा अगर मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा तो अलग बात है, पर अगर सब कुछ क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो प्लीज रिप्लाई किया कीजिए, बी अटेंटिव इन द क्लास। सो हियर सैलरी स्टार 20/100 में सैलरी आपका वेरिएबल स्ट्रिंग है, इसलिए एरर आई है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? ये एरर कैसे दूर करें, जल्दी से बताइए। अभी पढ़ा हमने इससे पहले। यस, सैलरी अभी आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, आप चाहते हो कि ये बन जाए या सैलरी नाम के वेरिएबल में नंबर असाइन हो जाए स्ट्रिंग की बजाय, तो क्या करेंगे? Ma'am, we put bracket. यस यस, ब्रैकेट्स, और क्या लिखना पड़ेगा बताइए, क्या लिखना पड़ेगा? INT, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ कहाँ लिखा था, यस, ये जो मैंने आपको कोड बताया था ना अभी, जहां मैंने लिखा था INT देन ब्रैकेट देन इनपुट देन एंटर मार्क्स, तो यहाँ पर INT फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आप एंटर कर रहे हो ना, उस वैल्यू को प्योर इंटीजर बना करके मार्क्स वेरिएबल में असाइन कर रहा है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हमें भी सैलरी की जो वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं उस पर हम लगा देंगे INT फंक्शन, ताकि सैलरी की वैल्यू आपकी इंटीजर बन जाए। ठीक है। तो ये हो गया इनपुट फंक्शन और INT का यूज। अब जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो कैसी कैसी एरर आ सकती है वो देखिए। एंटरिंग फ्लोट वैल्यू वाइल कन्वर्टिंग टू INT, आप करना तो चाहते हैं INT में कन्वर्ट, लेकिन आपने क्या दे दिया, वैल्यू फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू पर आप कन्वर्जन अप्लाई INT का नहीं कर पाएंगे, इसलिए एरर आ रही है। फिर सेकेंड एग्जांपल, एंटरिंग ऑफ वैल्यूज इन वर्ड्स रादर देन न्यूमेरिक। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन रन हुआ, इनपुट फंक्शन रन होने के बाद उसने पूछा व्हाट इज योर एज, जो भी एज की वैल्यू है आप वो एंटर करिए, लेकिन एज की वैल्यू एज ए नंबर एंटर करिएगा। यहाँ पर एज की वैल्यू एज ए कैरेक्टर एंटर की गई है, जिसके कारण एरर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर व्हाइल टेकिंग इनपुट एज नंबर्स। तो अभी ये मैं डिस्कस करने की बजाय आपको सीधे ले चलती हूँ कुछ क्वेश्चंस पर। देयर आर 6 क्वेश्चंस गिवन बेटा, आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और इनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिए अपने पाइथन में। ठीक है, तो कल जब हम मिलेंगे क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपने इसमें से कितने प्रैक्टिकल्स किए। ओके, तो अभी हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? मैम यस, मैम क्वेश्चंस के आगे WA और P लिखा था, मैम उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? WAP कहाँ लिखा था, एक मिनट। राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, write a program to enter, write a program to enter radius, write a program to enter name. Okay, चलिए, यस मैम। तो अभी हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल फिर से मिलेंगे। ये जो 6 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के आप जरूर देखिएगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.